All the students of class 7 of Krishna Memorial High School, welcome to our online class. Now today I will go to start a new chapter from science. This is part 2 and the chapter name is Reaching the Age of Adolescence, and we will upload our first part in our YouTube channel. And now this is part 2, reproductive health, and I also translate this part in Hindi, so listen it carefully. Let us start this part. Health means freedom for sickness or disease. हेल्थ का मतलब होता है कि sickness और disease से बचना. Health also includes freedom from ancients and tension. Reproductive health from a crucial part of general health. Reproductive health includes all those except that give an individual a safe and satisfying life. The question how now arises, what is reproductive health? Reproductive health includes the following accept. तो हेल्थ का मतलब तो सीकनेस और डिसीज से बचना होता है, और हम लोगों का हेल्थ जो है ये मतलब आज़ाद होना चाहिए टेंशन से और भी बहुत कुछ चीज़ से. और रिप्रोडक्टिव जो होता है वो जनरल बात है हम लोगों का हेल्थ में. लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि रिप्रोडक्टिव जो है वो हेल्थ के लिए कैसा होना चाहिए और ये कैसा होता है. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बोले गए हैं, आइए पढ़ते हैं. Proper understanding about reproductive organs. People should have proper understanding of the reproductive organs and their importance in life of individual. One should not feel ashamed of asking questions about them if she has some doubt. They are the parts of body like and other parts. Children at the threshold of the puberty period should know that the changes they are going to face, observe or feel in the adolescence period are normal and a part of life cycle. Remember, it is always better and useful to get proper knowledge about the sexual process and you should not feel ashamed about them. तो हम लोगों को ऑर्गन्स के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ऑर्गन्स जो होता है ना वो हर एक का बॉडी में होता है. हम लोगों को शर्माना नहीं चाहिए कि हाँ हम लोग ये पूछ रहे हैं या वो पूछ रहे हैं. जो है डायरेक्ट पूछ लेना चाहिए, जिससे हम लोगों को सब क्लियर हो जाना चाहिए. ये सब नॉर्मल बात है, ये सिर्फ बॉडी का एक पार्ट है. जैसे सब पार्ट है वैसे वो भी पार्ट है, तो हम लोगों को पूछने में कोई शर्म नहीं आना चाहिए. Adolescence period is a normal phase of growing up as the children reach the age of puberty. Because of many physical, mental and emotional changes, they come under stress. They start thinking that something abnormal is happening. They must understand that everything is normal and part of. Sometimes youth goes astray. Some so-called well-wishers from the peer group may suggest some drugs for getting relief on pleasure. You must say no to them. Smoking, drinking or talking any kind of drug is very harmful, or these things are habit forming. If one is hooked to them, he or she is gone from ever as they become addictive. These things ruin not only the individual but the entire family and relation. तो एडोलेंसेंस पीरियड में जब होता है कि उस पीरियड में फिजिकली मेंटली बहुत सारा प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम लोगों को सभी के साथ शेयर करना चाहिए. और जिसको हम लोग को देख के लगता है कि हाँ वो हम लोगों का बात समझेंगे, उनसे हम लोगों को शेयर करना चाहिए. और कुछ अच्छा सा कोई सजेस्ट भी दे सकता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, और हम लोगों को रिलीफ टाइम पे थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए. स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और टेकिंग. इस एज में क्या होता है कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, मतलब ये सब लेने का बहुत शौक हो जाता है, तो ये सब नहीं करना चाहिए. ये सब एक तो एडिक्टिव है, एक बार लोगे तो बार बार लेने का मन करता है. Now second, observance of personal hygiene and cleanliness. Personal hygiene plays a very important part in keeping us fit and healthy. We should maintain extreme caution in keeping our body clean. Undergarments should be changed every day. Our taking a proper bath, every part of the body is important for us, so we must take care of them properly. अपना जो पर्सनल हाइजीन होता है वो हम लोगों को हमेशा करना चाहिए. मतलब इससे क्या होता है कि हम लोग का शरीर जो है वो फिट एंड हेल्थी रहता है और हम लोगों को कोई बीमारी नहीं होता. और अपना जो भी अंडरगारमेंट्स जो होता है वो हम लोगों को हमेशा क्लीन रखना चाहिए और डेली चेंज करना चाहिए. और हम लोगों को हमेशा डेली नहाना चाहिए, और जिससे हम लोगों का जो बॉडी पार्ट्स है उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा. थर्ड,
nutritional needs of adolescents. During the period of adolescence, rapid growth of body and the body part take place. It is therefore necessary that the diet of adolescent youth is nutrients adequate and properly balanced in all nutrients. It should properly balanced in all nutrients. It should essential include proteins, carbohydrates, fat, vitamin and minerals is in required amounts. Balanced diet does not mean a costly diet. Ordinary roti, rice, dal, pluses milk and seasonal vegetable can form a balanced diet. Seasonal fruits provide necessary vitamins and minerals. तो हम लोग को न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए अपना बॉडी के लिए. उससे क्या होता है कि जो भी पार्ट मतलब हम लोगों का जो ग्रोथ हो रहा है उसमें वो हेल्प करता है. हम लोगों का ग्रोथ में वो हम लोगों को बहुत हेल्प ज़्यादा करता है. जैसे कि हम लोग बड़े हो रहे हैं तो हम लोगों को मिनरल्स, हम लोगों को हम लोगों को पावर मिलता है. उससे हम लोगों का ग्रोथ और अच्छे से होता है. तो हम लोगों को डाइट लेना चाहिए. अब डाइट का मतलब ये नहीं कि हाँ हम लोग हमेशा महंगा चीज़ ही खाएंगे. तो ऑर्डिनरी जो होता है घर में रोटी, राइस, दाल, ये सब हम लोगों को खाना चाहिए. और जो हर एक सीज़न का जो सब्जी और फल होता है वो लेकर के खाना चाहिए. उससे ज़्यादा मिनरल्स हम लोगों को मिलता है. फोर्थ, फिजिकली एक्सरसाइज. ऑल यंग boys and girls should perform some physical activities. Playing, jogging, cycling, swimming and brisk walks are good for health. तो जितने भी गर्ल्स और बॉयज़ हैं उन लोगों को फिज़िकली मतलब रहना, फिज़िकली एक्टिविटीज़ करना चाहिए. जैसे प्लेइंग, खेलना कूदना, कुछ साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना. इससे क्या होता है बॉडी का जो पार्ट्स होता है वो ठीक रहता है. Hormones other than sex hormones. Apart from pituitary gland whose hormones stimulate the gonads to secrete their hormones, there are other endocrine glands in the body which control and coordinate the working of various organ system, growth and development. तो बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं वो भी बढ़ते हैं. हार्मोन्स का मतलब होता है जिससे हम लोगों को कुछ हो रहा है. जैसे हम लोगों को कभी कभी पेट दर्द करता है तो वो भी हार्मोन्स के कारण होता है कि कभी हार्मोन्स मतलब आगे या पीछे थोड़ा सा एक जगह पे सिकुड़ जाते हैं तो उस वजह से होता है. तो ये जो होता है तो ये ऑर्गन सिस्टम मतलब वो बढ़ रहे हैं, बॉडी में जो चेंजिंग हो रहा है उस वजह से होता है. नाउ नेक्स्ट, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर शोन इन द फिगर. यहाँ पे कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड्स बताया गया फिगर में. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोन्स. द हार्मोन्स आर रिलीज इन स्मॉल क्वांटिटीज़. हार्मोन जो है वो बहुत कम क्वांटिटीज़ में रिलीज होता है. दे जनरली डू नॉट एक्ट एट द प्लेस ऑफ देयर प्रोडक्शन. वो मतलब प्रोडक्शन के रूप में नहीं निकलता है. हार्मोन्स हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट क्विक रिस्पॉन्सेज थ्रू केमिकल रिएक्शन. तो हार्मोन जो है उसकी वजह से हम लोगों को क्विक रिस्पॉन्स मिलता है. जैसे कोई केमिकल चीज़ हुआ हम लोगों का बॉडी में, जैसे कि हम लोग कुछ खाए और उससे कुछ केमिकली प्रॉब्लम हो गया तो वो जो हार्मोन्स होता है वो संग संग रिएक्शन कर देता है. ईच ग्लैड प्रोड्यूस हार्मोन फ्रॉम स्पेसिफिक फंक्शन. और हर एक ग्लैड, बॉडी में जितने सारे ग्लैड है वो सभी एक मतलब हार्मोन प्रोड्यूस करते ही है और सबका अलग अलग फंक्शन होता है. तो यहाँ पे देखो कितना सारा ग्लैड है. यहाँ पे बहुत सारा पिक जो है इमेज उसमें दिया हुआ है. अच्छा, यहाँ पे ग्लैड देयर सिक्रिएशन एंड हार्मोन एक्शन. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका हार्मोन सिक्रिएटेड और एक्शन ऑफ हार्मोन सभी का दिया हुआ है. तो ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, मतलब आप लोगों को याद करना पड़ेगा. ओके, नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड ऑल द क्वेश्चन आंसर एंड योर होमवर्क रिलेटेड टू दिस चैप्टर वी विल सेंड इन योर व्हाट्सएप. थैंक यू.